Hello everyone, welcome back to EVS class. So in previous video we revised chapter 6. Okay, what is that? Food for health. Okay, so we all need food to grow and live. You know, so today we are going to revise chapter 7, house and clothing. Okay, so first of all, one question for you all. So why do we need house? Come on, tell me. Yes, a house protect us from heat, cold, wind and rain. So we all need house. Okay, we animals, birds, we all need house to live in, because house protect us from heat, cold, wind and rain. Okay, so we make houses and animals make their homes. For animals we make homes. Okay, next birds make their homes like nest, shelter. Okay, on tree, जैसे ट्री के ऊपर birds भी अपने घर बनाते हैं. Okay, so everyone needs house. Okay, so house are made of different materials. Okay, so house जो बनाने के लिए हमें material की ज़रूरत पड़ती है. Okay, like cement, bricks, stones, wood, sticks, mud, straw. These are all called materials. Okay, so people use different things to build houses. Okay, so some people make kacha house and some people make Pakka house. So in Pakka house needed materials are cement, bricks, stones, iron, steel, etc. Okay, in Kacha house needed materials wood, straw and bamboo sticks. Okay, so I am going to show you some pictures. Okay, so this is our chapter. Okay, Pakka house and Kacha house. These are types of houses. Which are they? Kacha house and Pakka house. So Kacha house is made up of mud and straw, and Pakka house is made of cement, brick, stone, steel, etc. Okay, see in this picture. Okay, these are Kacha house materials like mud, straw and woods, and this is Pakka house. Okay, so bricks, cements, sand, steel, iron, etc. Okay, these are materials needed to build houses. Okay, so some people lives in Pakka house and some people lives in Kacha house. Okay, so Kacha house ज़्यादातर आपको villages में मिलेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे. This is Kacha house. Okay, this is also Kacha house, and these are Pakka houses. Okay, so next move to type of roofs. Okay, so we already learned about roofs. Okay, the roofs of house may be flat or sloping. Houses in the plains have flat roof. Okay, so मतलब ये देखिए, this is क्या है? फ्लैट रूफ. दिस इज फ्लैट रूफ. फ्लैट रूफ कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर जहाँ हम रहते हैं, लाइक मोरबी, राजकोट, है ना, इन इंडिया में. सो जहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पे हम लोग फ्लैट रूफ्स बनाते हैं. लेकिन जहाँ हेवी रेन होती है और आइस फॉल होती है माउंटेन्स में, वहाँ पे स्लॉपिंग रूफ बोलते हैं. ओके, स्लॉपिंग मीन्स जो आप स्लाइडिंग करते हो, पता है, गार्डन में स्लॉपिंग. ओके, दिस इज कॉल्ड स्लॉपिंग रूफ. ओके, स्लॉपिंग रूफ कौन बनाते हैं? People living on mountains make houses with sloping roofs so that the snow can easily fall off from the roof. मतलब वहाँ पे माउंटेन्स में रेन होती है और आइस फॉल होती है ना, तो इसीलिए वहाँ पे लोग स्लॉपिंग रूफ बनाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस में. स्टिल्ट हाउस पता है आपको?
Stilt house stay on above water. This is stilt house. कहाँ रुका है ये देखिए, above water, है ना. क्यों ऐसे बनाते हैं? बिकॉज इन सम प्लेसेस देर आर हेवी रेन्स, मतलब लॉट ऑफ रेन्स, जैसे रेन ज़्यादा होता है और फ्लड आता है तो वो लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं. अगर प्लेन हाउस बनाएंगे तो घर में सारा पानी घुस जाएगा, इसीलिए दे मेक स्टिल्ट हाउस. ओके, सो पीपल लिविंग इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट मेक हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स विथ स्लॉपिंग रूफ्स. ये भी देखिए, ये भी स्लॉपिंग रूफ ही बनाते हैं स्टिल्ट हाउस. ओके, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, है ना. दिस इज ऑल्सो स्लॉपिंग रूफ, ताकि जब भी रेन आए तो वो वाटर वहाँ पे रुक ना जाए रूफ पे, तो इजीली फॉल ऑफ हो जाए, तो वो लोग ऐसे बनाते हैं. ओके, अभी हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस. हमने जाना टाइप्स ऑफ हाउसेस कौन सा है, पक्का हाउसेस एंड कच्चा हाउसेस. ओके, सो पक्का हाउस क्या होती है, ए. दीज आर ऑल पक्का हाउस. क्या है, बिल्डिंग्स, बंगलो, अपार्टमेंट्स. ये अपार्टमेंट दिख रहा है आपको. ओके, सो अपार्टमेंट हैव मैनी, ये है मतलब बहुत सारे हाउस रहते हैं एक फ्लैट में, लेकिन बंगलो में एक ही घर रहता है. ओके, तो फ्लैट में कैसे रहते हैं, फ्लैट में बहुत सारे घर रहते हैं. ओके, सो मैनी फ्लैट्स हैव मैनी हाउसेस इनसाइड एंड रूम्स ऑल्सो. ओके, सो दीज आर पक्का हाउसेस. पक्का हाउसेस में क्या एग्जाम्पल आएगा, बंगलो एंड flats. Okay, see, these are all bungalows. Okay, so आप पूछेंगे अभी कच्चा हाउस का एग्जाम्पल क्या है. कच्चा हाउस का एग्जाम्पल है हट. ये देखिए, दिस इज कॉल्ड हट. ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस. पक्का हाउस में 2 एग्जाम्पल्स है, बंगलो एंड फ्लैट्स, और कच्चा हाउस में एक ही एग्जाम्पल है, हट. क्लियर ना. और एक हाउस है जो आइस से बना है. आप जानते हो आइस से बनता है हाउस. यस, आइस से बनता है इग्लू. इग्लू हाउस. ओके, सी, दिस इज कॉल्ड इग्लू. ओके, सो इग्लू कहाँ पे बनाते हैं, जहाँ पे हेवी स्नोफॉल होती है, वहाँ पे वो लोग इग्लूज बनाते हैं. ओके, इग्लू में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते. दिस इज़ ऑल्सो टेम्पररी हाउस. ओके, सो टेम्पररी हाउस और परमानेंट हाउस में बहुत फ़र्क है. ओके, टेम्पररी हाउस मीन्स टेम्पररी हाउस वी आर एबल टू मूव दैट हाउस वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट परमानेंट हाउस वी कुड नॉट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. परमानेंट हाउस को आप यहाँ से वहाँ रख सकते हो, लाइक अभी आप जो घर में हो, आपको पसंद नहीं आया इसीलिए आप शिफ्ट कर सकते हो, नो. इसीलिए ओके, टेम्पररी हाउस और परमानेंट हाउस बोलते हैं. ओके, सो परमानेंट हाउस में क्या है एग्जाम्पल, बंगलो एंड फ्लैट्स. पक्का हाउस का भी सेम एग्जाम्पल है और परमानेंट हाउस का भी सेम एग्जाम्पल्स है, बंगलो एंड फ्लैट्स. ओके, सो अभी टेम्पररी हाउस जानते हैं. टेम्पररी हाउस, क्यों हम टेम्पररी हाउस हम बोलते हैं, बिकॉज मस्ट हाउसेस अराउंड अस कैनॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दीज आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेस. Okay, so some people keep moving from one place to another place. They build house that can be moved from one place to another. Okay, temporary house कौन बनाते हैं, लाइक जब भी हम पिकनिक के गए तो हम जैसे जाते हैं फॉरेस्ट में वगैरह घूमने जाते हैं, तो वहाँ हम टेंट बनाते हैं. क्या ये टेंट किससे बनता है, थिक प्लास्टिक क्लॉथ से बनता है. ओके, इसको हम रिमूव कर सकते हैं. एक बार हमने टेंट बांधा फिर उसके बाद हम रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए इनको टेम्पररी हाउस बोलते हैं. इवन कारावान भी, कारावान इज़ ऑल्सो टेम्पररी हाउस. और कौन से हैं, ओके, कारावान, tent and igloos, these are all temporary house, not permanent house. Okay, so now we are talking about clothes. Clothes we wear. Okay, so why do we need clothes? Clothes protect our body from heat,
cold, wind and rain. We wear different types of clothes in different seasons. Okay, so we wear cotton clothes in summer and woolen clothes in winter. Why? है ना? So we wear different clothes in different season. We wear cotton clothes in summer. क्यों? बिकॉज जो कॉटन क्लॉथ्स है वो हमारे क्योंकि समर में गर्मी बहुत रहती है, हीट बहुत रहती है, तो हमारे बॉडी हीट होती है तो स्वेट आता है, तो उसको सोक करने के लिए हम कॉटन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं. ओके, सो वेयर डू वी गेट कॉटन? वी गेट कॉटन फ्रॉम cotton plants. Okay, so cotton plants gives us cotton to make cotton cloths. Okay, so we wear cotton cloths in summer because it soaks our sweat and keeps us cool. Okay, that's why we wear cotton cloths in summer. Next we are going to talk about woolen cloths. Okay, so why do we wear woolen cloths in winter? बिकॉज इन विंटर वहाँ पे विंटर में बहुत सारा कोल्ड रहता है, तब हमारे बॉडी को हीट की ज़रूरत है. दैट्स वाई वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर. ओके, सो हु गिव्स अस वूल? शीप गिव्स अस वूल. ओके, सो वूल इज यूज्ड टू मेक मफलर्स, स्वेटर्स, caps, socks, etc. Okay, so in winter we wear woolen cloths because woolen cloths keeps us heat. ओके, जो हमारा बॉडी को जो हीट चाहिए वो वुलन क्लॉथ से मिलती है. ओके, सो आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया. रिवाइज. ओके, सो हमने हाउसेस के बारे में जाना. ओके, तो रिवीजन शीट में चैप्टर 8 का कोई भी कुछ भी नहीं है, सो इसीलिए मैं 8 चैप्टर का रिवीजन अलग ही करवाऊँगी. ओके, सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर थे वो आज हम करेंगे. ओके, कल हमने कहाँ तक किया था? 1 to 12 तक किया था हमने. ओके, सो यहाँ तक किया था, तो आज हम ये करेंगे, कंप्लीट करेंगे. ओके, सो वाई डू वी नीड क्लॉथ्स? जस्ट मैंने अभी इसको चैप्टर कंप्लीट किया तो उसी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. तो क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हीट, cold, wind and rain. Okay, so our 14th question is which trees live for many years? Okay, this question is related from chapter 1. Okay, so banyan tree has lived more than 200 years. more than मतलब 200 से भी ज़्यादा साल ये पेड़ ऐसे का ऐसा ही रहता है, जल्दी मर नहीं जाता है. ओके, सो विच प्लांट इज़ यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड? मैंने ये सेकेंड चैप्टर में आपको समझाया था, याद हो तो सेकेंड चैप्टर एक बार वीडियो ओपन करके देखिए. ओके, जो मैंने पहले बनाया था. सो यूट्यूब में आपको वीडियोस मिलेंगे. ओके, सो तुलसी लीव्स खाने से हमारा कफ जल्दी ठीक होता है, कोल्ड एंड कफ. तुलसी लीव्स या फिर तुलसी टी. ओके, सो अवर 16th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन आइडियल हाउस? मतलब अच्छा हाउस हम किसे कहते हैं? सो द आंसर इज द होम शुड बी एरी एंड वेल वेंटिलेटेड. ओके, आपको पता है ना कि अच्छा घर किसे कहते हैं? ओके, सिर्फ पेंटिंग किया, अच्छे फर्नीचर लगाया, उसको अच्छा घर बोलते हैं? नो, एरी एंड वेंटिलेशन होना चाहिए. लाइक ज़्यादा से ज़्यादा विंडो ओपन रखना चाहिए ताकि किरण, सन के जो रहते हैं ना किरणें, वो हमारे घर के अंदर गिरना चाहिए ताकि उससे क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जर्म्स रहते हैं वो मर जाते हैं. ओके, तो हमारे घर में अच्छी हवा आना चाहिए विंडो से, डोर से. उस हाउस को हम अच्छा हाउस बोलते हैं. ओके, 17th क्वेश्चन, नेम एनी 3 लीफी वेजिटेबल्स. So cabbage, lettuce and spinach. Okay. Our 18th question is name the food that fight disease. मतलब कौन सा फूड हमें फाइट करता है डिसीज़ होने में? मतलब डिसीज़ मीन्स इल. ओके, बीमार होने से कौन सा हमें फूड ग्रुप बचाता है? प्रोटेक्टिव फूड. तो वो कौन से हैं?
fruits, nuts and vegetables. Okay. Our 19th question, name any 3 temporary houses. So our answer is tent, caravan and igloo. So okay, our 20th question is, where do lions live? Okay, we all know wild animals lives in forest. बस उनका भी एक घर है ना, मैंने बताया था. तो क्या है आंसर? lions live in den. जो उसका घर है उसको हम den बोलते हैं. ओके. 21 क्वेश्चन, नेम 2 प्लांट फाइबर्स. मतलब जो हमें फाइबर देते हैं उनका 2 एग्जाम्पल लिखना है. लाइक कॉटन एंड जूट प्लांट गिव्स अस फाइबरस. ओके. सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज, नेम 2 हर्बीवोरस. मतलब जो ओनली प्लांट्स खाते हैं वो एनिमल्स को हम हर्बीवरस बोलते हैं. हर्बीवरस वाइल्ड एनिमल्स में भी रहते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स में भी हर्बीवरस रहते हैं. ओके. लाइक काउ, बफेलो, गोट, दीज आर ऑल हर्बीवरस एनिमल्स, बट डोमेस्टिक हर्बीवरस एनिमल्स. ओके. मैंने यहाँ पे पूछा है वाइल्ड एनिमल्स चैप्टर रिलेटेड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एलिफेंट एंड ज़ेब्रा. These are all herbivorous because they eat only plants leaves, not flesh. Okay, that's why we called them herbivorous. Okay, so our chapter is completed. Tomorrow we are going to revise chapter 8, that is last chapter of our revision. ओके, थिंग्स अराउंड अस. उसके रिलेटेड रिविजन शीट में कुछ नहीं है, सो मैं ऐसे ही आपको रिविजन करवाऊंगी. ओके. सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन.